में हम लोग ज्यूरिडिक्शन के बारे में बहुत कुछ बोल गए थे। सर आज उसी को थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हैं और पूरे ज्यूरिडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन पे कन्फाइन करते हैं। So that we can prepare now officially proper for the AOR examination. So if we will discuss about the Supreme Court jurisdiction, so we should straightforward come to थोड़ा-सा उसके पहले मैं सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन जाने से पहले फंडामेंटल राइट्स पे भी थोड़ा डिस्कस करूँगा। आज का एजेंडा ये है कि बस फंडामेंटल राइट एंड सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और सबके पास है। एनीवे ये हाईलाइट किया हुआ पिछले साल हमने ग्रुप पे डाल रखा था और ये ऑलरेडी अजय जी ने ड्राइव पे भी डाल रखा है। सो इसको शेयर करने की जरूरत तो है नहीं अजय जी। सर मैं 25 वाले में भी इसको अपलोड कर दूंगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ही पार्ट है, बेयर एक्ट है और सबके पास होता है, बट इसमें हमने सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर दिया था बाय द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। ओनली फंडामेंटल राइट्स और कंसर्न आर्टिकल्स जो रिलेटेड है, बट एनीवे मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। शुड आई पुट इट ऑन द ग्रुप राइट नाउ? मुरारी जी जी सर। ग्रुप पे डालूं या आफ्टर डिस्कशन? पहले इस पॉइंट को ही डिस्कस कर लेते हैं। बाद में डाल दूं, फिर से मैं एजेंडा डिक्लेयर कर दूं। आज भी मैं सिर्फ और सिर्फ जुरिडिक्शन और जुरिडिक्शन के सर्टेन पार्ट, सर्टेन फेसेट, जिस एंगल से हम आर्टिकल को देखेंगे वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So be careful on that particular part. Then we will enjoy the entire stuff. First of all, I would like to go to only Article 32 first. Yes, this is on your screen. A right to constitutional remedies. Article 32. Complete Article 32 is on your screen, where you can see there are four sub-clause of this particular article. Clause 1, Clause 2, Clause 3, and Clause 4. I'll be focused on only 3 clause and not on third clause. Clause 1, 2, and 4. You can see Clause 1 itself says the right to move the Supreme Court. So you can see here the right is created by this particular article, and the right is to move the Supreme Court. This is a right, and it is a fundamental right. By appropriate proceeding, this is one condition. For
the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. बड़ा plainly हमने read out किया. Have you seen that what is guarantee? Guaranteed part is to move the Supreme Court by appropriate proceedings and for the enforcement of right conferred by this part. Itself says the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the right conferred by this part is guaranteed. This right is vested to whom? It is vested to the citizen. For the purpose of to move the Supreme Court only. And for the enforcement of the right conferred by this part. So if we will discuss about the limitation. What is the limitation? Limitation is if the right incurred to any citizen by any other part of this constitution except part 3 or any rights coming through any statutes or any rights is coming through otherwise, they cannot invoke Article 32. Article 32 can be invoked for the infringement of the fundamental right conferred in Part 3 only, isn't it? Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So, Article 311, 311, 309 उसके इन्फ्रिंजमेंट के लिए या 74 उसके इन्फ्रिंजमेंट के लिए कैन वी अप्रोच अंडर आर्टिकल 32? नहीं. But Article 311 is being infringed and also infringe this fundamental right. Then we can invoke 32 for the enforcement of fundamental right. For example, 309 is for the entry into the government system, the entry process of the government system, and 311 is the exit process from the government system. 309 itself says कि जुडिशियरी एग्जाम के लिए आपके लिए ये certain rules बने हुए हैं, ये certain norms बने हुए हैं, and this rules is conferred by the governor for that particular state by article exercising article 309. जब पहले नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी क्रिएटेड होगी, नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन में ये टर्म्स फॉलो किए जाएंगे और वो टर्म कुछ लोगों के लिए वायलेट होता है और कुछ लोगों के लिए अप्लाई होता है. मीनिंग thereby there is not equality, it's not reasonable, it is affecting the life of the particular citizen. So straightforward, 3 article under this part is being violated by the particular act, which is Article 14, Article 19, as well as Article 21. Am I clear up to this point or not? So Yes, sir. Yes, sir. that's why this article may be invoked. मेरा सिंपल सा कहना यहाँ पर मतलब मीनिंग ये है, कहने का मतलब ये है कि in any manner or be rights may be infringed, but there must be certain right which is infringed, which incurred through this particular part
part 3. So that is the meaning of simply for the enforcement of the rights conferred by this part. It doesn't mean solely this part, it also having the meaning some part from this is also, or some part may be outside this particular fundamental right, but maybe from the constitution, maybe from the statutes, maybe from the any other bilateral document that is called the contract or agreement. Right? कहाँ से incurred होते हैं? Through this constitution or by any statutes or by your contract. So यदि constitution देखें, constitution is the one and only book. लेकिन statutes की बात करें जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आया है और पहले से रिकॉग्नाइज्ड है, इन सारे राइट्स स्टैट्यूट्स बुक्स को देखें तो देयर आर अ सीरीज ऑफ स्टैट्यूट्स, और उसके अलावा जो राइट क्रिएट के जो थर्ड मोड है जिसको आप एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसमें कितने राइट क्रिएट हो जाते हैं? इवन कल्चर, द सीरीज ऑफ राइट्स में बी क्रिएटेड थ्रू द लैक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, but this is confined to only part 3. इसके कोई भी right infringe होंगे by any act, you can approach to this particular court. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Now come to the another article, another sub clause of this particular article, which itself says the Supreme Court shall have power to issue. Who has the power of issues? The Supreme Court. So what is created by this particular sub clause? This is created power. Is this power discretionary or mandatory? There shall have. It's a mandatory nature. Nature of this power is mandatory. To whom? The Supreme Court. So we are talking about this jurisdiction is created for the Supreme Court only. So the Supreme Court shall have power to issue what? Directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate. And for what? For the enforcement of any of the rights conferred by this part. So this part for objective is for the enforcement of any of the right conferred by this part is mapping here from clause 1 for the enforcement of the rights conferred by this part. This is the connection between these two articles, these two subclauses of the particular articles. So this is the objective for empowering power, and that power is to issue directions or orders or writ, including writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate. To whom? To the Supreme Court. And it's a mandatory power of the Supreme Court. Am I clear up to this point or not? Now, एक चीज और मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहता हूँ. The power to issue directions or orders or writs, including a writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. जुडिशियल वर्ल्ड में कितने तरीके के पावर होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन और कोर्ट को? These are the one and only 3 powers.
either direction or orders and rates. Direction something advisory है कि you need to do certain set of this, ये आपको करना है. Orders in the nature of direct orders, so do precisely this particular part, right? And the rates is the questions. Questions kind of order. आप जरा देखिए ना, 5 रिट्स, नेचर ऑफ रिट्स आपका यहाँ ऑलरेडी प्रोड्यूस है. Habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. Habeas corpus भी कहा जाता है कि प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर बॉडी बिफोर द कोर्ट. मैंडमस अलग डायरेक्शन है, किसी के एग्जिस्टेंस को एंड करने का पावर है. सो इफ यू विल थिंक अबाउट दिस पावर, these are the absolute power and power for anything, nothing is being left. If we will discuss about the limitation of that particular nature of power, तो ये जो पावर है वो अनलिमिटेड है, कहीं से भी लिमिट नहीं होता है कि आप यहाँ ये नहीं कर सकते, वहां ये नहीं कर सकते. और आपके लिए ये एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको पावर है या नहीं पावर है. दिस पावर इज मतलब दिस इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर. इसी पावर को हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, जो सबके पास नहीं है, जो है सिर्फ और सिर्फ त्रिदेव के पास. त्रिदेव के पास जितने भी पावर है वो सारा पावर यहाँ समा जाते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पावर. दे कैन डू, माने इवन कोई स्टैट्यूट्स आया है, कोई ऑर्डिनेंस आया है, उस सबको इस पावर के तहत आप क्वॉश कर सकते हैं. Isn't it? चाहे वो जुडिशियल ऑर्डर हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, लेजिस्लेटिव ऑर्डर, लेजिस्लेटिव एक्ट हो, किसी भी चीज को आप एंड पॉइंट पे पहुंचा सकते हैं. और वो नहीं भी हो तो उसके लिए लाने के लिए आप डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं. तो दिस इज एग्जैक्ट, वो कहते हैं ना अनादि, ब्रह्मा विष्णु महेश अनादि हैं. मीनिंग देयर बाय कि दे डज नॉट हैव एंड. मतलब एक मिडल से शुरू किया जाए तो ऊपर कहां तक जा रहे हैं, दिस इज द इनफिनाइट, नीचे इनफिनाइट, मतलब इनका एग्जिस्टेंस इनफिनाइट है. इनका क्रिएचर जो कुछ भी है उसकी लाइफ लिमिटेड है, कहीं ना कहीं एंड है. लेकिन त्रिदेव की कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं और करते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. So that sort of thing, this power is in the very absolute form. Issue, direction, order, rate, ये बहुत ही ब्रॉड नेचर है. इंक्लूडिंग उसमें सर्टेन रेट्स आर इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग इन द नेचर ऑफ habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, and this is not limited to this particular kind of rate. This may be extended to other rates. Am I clear to explain this particular fundamental rights or not? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी है, तीसरा पॉइंट ये भी है, आर्टिकल सब क्लॉज 4, द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल shall not be suspended except as otherwise provided by this constitution. यानी किसी भी एग्जीक्यूटिव पार्ट से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप इस पार्ट को सस्पेंड नहीं कर सकते. No one can suspend it. So this is, the absolute kind of article. इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है, जस्ट आई एम
missing that particular word. I'll call back again जब जरूरत हो. अभी मैं आपको एक चीज और मैं बतलाऊं कि कैसे इस आर्टिकल को हम याद करते हैं और समझते हैं. फिर से मैं रीड करना चाहता हूं एक बार और. क्लाउज 1 सेज, देखिए मैं ब्रेक करके रीड कर रहा हूं और उसको ब्रेक कर द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज द वन पार्ट. आप यहां पर ब्रेक इस पॉइंट पे कीजिए. टू अगेन बाई एंड फोर एंड फिर से एज. सिर्फ इस पॉइंट को फोकस कीजिए इसी ऑर्डर में. टू बाई फॉर दिस फॉर एज. या फिर आप सिर्फ और सिर्फ तीन पार्ट को लीजिए और दिस इज द टू बाई एंड फॉर एंड थर्ड पार्ट इज गारंटेड. अब आप रीड करके देखिए क्या था. कनेक्टर क्या क्या था. टू बाई एंड फॉर and one and only full stop is there. No comma available. जब भी आप आर्टिकल को बाई हार्ट करने के लिए जाएं तो इन सारी चीजों को आप नोटिस करें. यहाँ कॉमा नहीं है, ओनली वन फुल स्टॉप है, तीन कनेक्टर है और तीनों कनेक्टर गारंटेड है. नाउ आई एम रीडिंग द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय appropriate proceeding for the enforcement of the right conferred by this part is guaranteed. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जरा रिदम को देखिए. सो इन आवर माइंड थ्री थिंग्स आर देयर. टू बाय फॉर इज गारंटी. फिर से रिपीट कर रहा हूं. द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय appropriate proceeding for the enforcement of the right conferred by this part is guaranteed. ये मैं याद नहीं करा रहा हूं, बेसिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हाउ टू अडॉप्ट द एंटायर थिंग. इफ आई विल गो टू द अनदर पार्ट बाय सेम लॉजिक, अनदर क्लाउज, तो यहां पर क्या होगा. द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इंक्लूडिंग फॉर. यहां भी तीन है. फिर से आप देखिए. द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर, one part. Two, issue direction or orders or writ, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, comma, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the right conferred by this part. Should I read it again? Yes, sir. The Supreme Court shall have power to issue directions, orders, or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any right conferred by this part. पॉज पॉइंट मैंने लिया था दिस टू को, नॉट इंक्लूडिंग, एंड देन इंक्लूडिंग के बाद पूरा है रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate. And third is for what? A sense है, सबके सेंस है जहां भी हमने ये पॉज लिया है. फर्स्ट पॉइंट इज दिस टू मीन्स this is connecting the Supreme Court power
to issue, limit of the power is this, कि to issue directions, orders, writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate, and for what? This is the objective, for the enforcement of any of the rights conferred by this part. And this is cannot be, this is the primary primacy है, इस आर्टिकल की primacy है कि इस आर्टिकल को हटाया नहीं जा सकता, यानी कम नहीं किया जा सकता, टेकन अवे नहीं, सस्पेंड नहीं किया जा सकता, unless until the constitution itself provide anywhere. So this particular objective and clause 1 and 2 की जो बातें हैं, this is properly applied not only for the writ before the Supreme Court, but also for the PIL. So PIL की objective आपकी ऐसी हो for the enforcement of the right conferred by this part के बजाय कुछ और part को हम invoke करें, does it possible this PIL or writ? नहीं. तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन वहां होना मैंडेटरी है, और उसमें हम ये कहते हैं, प्रे करते हैं कि आपको ये पावर है, वो पावर को एक्सरसाइज करो. कहते हैं ना प्रे में, टू इशू डायरेक्शंस, टू इशूज ऑर्डर और इशूज द रिट इन द नेचर ऑफ सच. सो जब भी आप प्रेयर लिखें, यहाँ पर प्रेयर पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो प्रेयर हम लोग कहते हैं क्या, issue a proper direction, orders or writs, including writs in the nature of this, whichever may be appropriate. यानी यहां से लेकर के यहां तक हम प्रोड्यूस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेफ साइड, सबको इंक्लूड करते हुए. इफ यू रिमेंबर कि कैसे रिट का प्रेयर होता है, सो प्रेयर इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय दिस एंड कमिंग फ्रॉम हियर. यदि प्रेयर में किसी और राइट्स की बात कर ले और वो फंडामेंटल राइट नहीं है, डज इट एप्रोप्रिएट फॉर 32? कोर्ट क्यों नहीं आपको भेजे, कोर्ट क्यों नहीं आपसे पूछे कि कैसे 32 अप्लाई हो रहा है? हाउ आई एम एम्पावर्ड फॉर दैट? कोर्ट खुद ही वहां एम्पावर्ड नहीं है unless until it is expanded up to certain limit. Now the most crucial part, original jurisdiction का 32 आपने डिस्कस किया. So let us move on another article. So come on the article 129. मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा. The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. आप देखिए आर्टिकल 32 में दो क्लाउज, क्लाउज 1 एंड क्लाउज 2 है. क्लाउज 1 फॉर द राइट कन्फर्ड टू द सिटीजन. जरा मैं चेक कर लूं कि मैं सिटीजन के लिए बोल रहा हूं ये सही है या नहीं, या फॉर एनीवन. It should be for Anyone, sir. Anyone. The word citizen is not there. This not is there. wrong. Sir, certain articles नहीं. provide. हाँ, इसमें सिटीजन वर्ड नहीं है, सो फॉर एवरीवन. ठीक है. Depending upon the right, with certain rights are हाँ for हाँ. citizens only, certain are for everyone. So yes, yes, of course, क्योंकि वो डिपेंडिंग अपॉन द राइट्स है कि who can invoke. Now
come to Article 129. 129 itself combining by saying this word and, combining the two types of power. One is, it shall be a court of record, it is a declaration. And another is, shall have all the powers of such court. All the power of such court, including the power to punish for the contempt. So all the power of such court के अंदर एक power है, the power to punish for contempt of itself. So what is the all the powers of such court? यदि आपने a court of record declare किया है, mandatory shall be a court of record and shall have all the powers of such a court. So such a court के all powers कौन है? और एक तो आपने गिना दिया, इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. व्हाट इज द अदर पावर? ये पता लगाना आप लोगों का काम है. मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, बट इतना मैं जरूर बोलूंगा कि व्हाट एवर इट वुड बी, उसमें एक और पार्ट है, वो है इन दिस काइंड ऑफ पावर को हम कहते हैं इनहेरेंट पावर. और इनहेरेंट पावर का मतलब है ऑर्डिनरी कोर्स में वो पावर कहीं नहीं है. 142. नहीं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में वो पावर कहीं नहीं है. दिस पावर मे बी लेजिस्लेटिव पावर. Is it executive power or is it judicial power, or it's a combination of all these three? Jurisdiction कहीं है ही नहीं. but the situation warranted कि ये jurisdiction होना चाहिए. Will you go to the parliament to create that jurisdiction? Until then you have to wait for that. The answer is no. This is empower you to move forward. That is called the inherent power. It's not expressed, but it is implied power. तो जो एक्सप्रेस नहीं है, इम्प्लाइड है, तो उसके लिमिटेशन को आप कहां से निकालेंगे? केस टू केस. क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, उसको स्ट्रेस को कलेक्ट करते हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इनहेरेंट पावर जो इन्होंने प्रोनाउंस किया है टाइम टू टाइम, प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं. सो चैलेंजेस इज वेरी ह्यूज. अभी तक आपने देखा कि जो जुरिडिक्शन था, उस सारे जुरिडिक्शन के लिए हमने लिमिटेशन देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, सोर्सेस देखे, और जो एक्सप्रेसली इन्वॉल्व, जो पावर ही इंप्लाइड है, एक्सप्रेस्ड नहीं है. एक लाइन में कह दिया गया है कि दिस इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैव ऑल द पावर ऑफ सच कोर्ट. एंड व्हाट इज ऑल द पावर ऑफ सच कोर्ट, वो है ही नहीं लिखा हुआ. It is a circumstances driven. And that's the beauty of this particular power. And this power may be legislative. जहां legislation नहीं है, वहां भी आप अपना jurisdiction create करते हैं और फिर उसके बाद proceed करते हैं. That particular part. Executive power भी आपके पास है वहां पर. Judicial power भी. But only limited to, limit is there, limited to solve that particular issues in your hand. यदि देखिए, कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. उनके पास इनहेरेंट पावर एक्सप्रेसली नहीं है. सीपीसी और सीआरपीसी, सीआरपीसी का एक सेक्शन 482 है और सीपीसी का एक सेक्शन है 151. ये दोनों इनहेरेंट पावर देता है, बट नॉट कोर्ट टू द एपलेट कोर्ट to do the justice, right?
यानी सिचुएशन जब अनवारंटेड हो तो वैसे सिचुएशन में, लेकिन कोर्ट क्या करे? कोर्ट क्या करे? कोर्ट के पास तो एक्सप्रेस पावर ही नहीं है, और जो पावर नहीं है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी। इसके लिए एक वर्ड यहां इंसर्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस। और वो क्वेश्चन फ्रेम करके अपने जिसको पावर है उसको रेफरेंस करेगी, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को वो रेफर करेगी। दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस कि नाउ I am stuck at this particular part. I do not have any power. Just clarify me or generate me the power. Then I'll proceed on that line. और कोर्ट वहां रेफरेंस का आंसर करके वापस भेजती है कोर्ट में, और कोर्ट प्रोसीड करती है फिर। So court can consult to its higher court, who is either the court of record, which have all the power of such court, and they can answer to that particular question and then proceed on the case to case basis. And that's what that reference answer so many times is reflecting in your judgments. सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 141 है, बट व्हाट अबाउट हाई कोर्ट? हाई कोर्ट हैज द पावर 215, article 2 and 5 identical to the Supreme Court under article 1 to 9. This is the court of record, and that is the reference answer. All the judgment जो है ना हाई कोर्ट के, वो पूरे सबऑर्डिनेट कोर्ट उसको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली। नॉट ओनली शब्द गलत होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ 226 इज आल्सो देयर, 227 इज आल्सो देयर, so some power is also there, so collectively. So थोड़ा सा मैं हिंट देने के बाद, इस ऑल द पावर ऑफ सच अ कोर्ट को एक शब्द में यदि मैं कहूं तो दैट इज कॉल्ड द इनहेरेंट पावर। Sometimes it may be legislative nature, sometimes it may be executive nature, and sometimes it may be judicial nature. Regarding jurisdiction, they can create their own jurisdiction and exercise that particular jurisdiction. If vacuum is there and not contrary to any existing law. Am I clear up to this particular part or not? इस कंट्ररी का मतलब अलग मत निकालिएगा। कंट्ररी का मतलब यह है कि यदि कोई ड्रैकोनियन लॉ एग्जिस्ट करता है जिसको सर्वाइव, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अल्ट्रा वायरस है जिसको सर्वाइव नहीं करना चाहिए, तो उसको, उसके लिए तो डेमोलिशन का भी पावर यहाँ है। बट यदि कोई पावर एग्जिस्ट करता हो और मैप नहीं करता हो, वैक्यूम हो, तो deholds that particular provision, we cannot proceed. But inherent power in vacuum, जहां पावर नहीं है, प्राइमरली उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करता है टू क्रिएट अ सर्टेन पावर। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक वो राक्षस है जिसकी हर बूंद गिरने के बाद वो चाहे और ये विश कर ले तो इससे मेरे जैसा आदमी बन जाए, तो दैट कैन क्रिएट इट। कितना ये लगता है, कई फिक्स कहानियां हमने सुनी है जो कि एक बूंद गिरने के बाद काली जी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों उन्होंने ट्रेड ले रखा है, तो उस पावर का एब्यूज वो तरीके से करने लग जाए कि लोग, मैं ये भी डिक्लेयर करता हूं, मैं ये भी डिक्लेयर करता हूं, मैं ये भी डिक्लेयर करता हूं, डज इट वुड बी वैलिड? आंसर इज यस, इफ यू हैव दिस आर्टिकल पावर। So these are the one of the ब्रह्मास्त्र। आप जरा कंपेयर करके देखेंगे आर्टिकल 141 को, ये बाकी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के पास नहीं है।
145 बाकी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के पास नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास है. But this article is also having by the high courts this particular powers. So the point what I want to make out and the concluded, and I'm just concluding on this particular point कि आप लोग just पता लगाइए कि ये कौन कौन से power है. What is this all the powers of such a court? Such a court means such a court की जगह पर आप लिखिएगा, रख सकते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. थोड़ा सा आप लोग रिसर्च कीजिए और हमें भी इनलाइटन कीजिए, क्योंकि हमने जो ढूंढा है वो अलग तरीके से जजमेंट के थ्रू, और हम मेरे समझ में बहुत कुछ अलग तरीके से आया है, बट स्टिल फीलिंग इनकम्प्लीटनेस कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है. व्हाट इज द ऑल द पावर ऑफ सच अ कोर्ट, एंड इंक्लूडिंग वन पावर इज द पावर ऑफ पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. जितने भी इस आर्टिकल से रिलेटेड कमेंट्री आप देखेंगे या मैंने देखा है, अधिकतर कमेंट्री में सिर्फ और सिर्फ द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ इतना ही डिस्कस किया गया है. They are, and which is just including. They never ever discussed about all the power of such a court and what is that. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं. Now another relevant provision is concerned to the original jurisdiction, the article 131. आज मैं 131 को रीड आउट नहीं करूंगा. Neither we are going for अच्छा 132, 133 and 134. 136 हमने देखा है, रिव्यू. यस, I'll little bit discuss of this particular part, not much more. 136, 137, which itself says a special leave to apply for the to appeal by the court, by the Supreme Court. Notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant a special leave to appeal. So this is the discretionary jurisdiction. In its discretion is already there. It means that this is not the mandatory right. See, 136 एक लंबा डिबेट हम लोगों का लाइब्रेरी में चला था. 136 is the right to move to the Supreme Court. You can move anything, but it is the discretion of the court कि उसको वो अलाउ करे या ना करे. तो द अलाउ करना और नहीं करना ये कोर्ट का डिस्क्रिशन. So discretion vested to whom? Vested to the Supreme Court itself, not on the client. और क्लाइंट तो केस लेकर के आता है, वो तो आप मूव कर ही सकते हैं. जब वो कोर्ट कोर्ट satisfies this case must have some instance or requirement, certain things, then they will grant the leave, exercise the discretion. और exercise the discretion मतलब है what is the discretion? This discretion is grant a special leave to appeal, meaning thereby आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास आपके केस के लिए जुरिडिक्शन है नहीं. They will create the jurisdiction of appeal, appellate jurisdiction they will create by allowing this. So once the leave is granted, then your SLP would be converted into the appeal, and then only the impugned order can be disturbed. Are you getting my point or not? तो लीव ग्रांट करना एक इंस्टेंटेनियस डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है, जहां राइट टू अपील आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस तब शुरू हो जाएगी, यानी एपलेट राइट आपकी तब शुरू हो जाएगी
जब लीव ग्रांट कर दिया जाएगा और वो SLP स्पेशल लीव टू अपील जो है ना वो अपील में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब अपील में कन्वर्ट होगा तभी इम्पुंग जजमेंट को डिस्टर्ब किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। और दिस इज नॉट योर रेगुलर कोर्स ऑफ अपील, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि आपके मैटर को केस टू केस बेसिस आपके मैटर को अपील में कन्वर्ट किया जाए या नहीं। एंड दिस पावर is a very special kind of power कि another forum of appeal you are being created, आप मूव कर सकते हैं, बट द डिस्क्रिप्शन है। और ये जो ब्रॉडनेस है आप देखेंगे 132, 133, 134 कि अपील फाइनलिटी के अगेंस्ट ही आता है, बट दिस इज फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी केस और काउज passed or made by any court or tribunal in the territory of India। ये इंट्रिम भी नहीं देखता, नेचर ऑफ केस भी नहीं देखता, फोरम भी नहीं देखता, बट अक्रॉस एनीथिंग। हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया, उसमें हम लंबा नहीं जाते, बहुत अलग तरीके से ब्रॉडर पार्ट पिक्यूलियर जुरिडिक्शन है। और एक चीज और मैं बतला दूं कि हमने कहीं देखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट या कहीं और भी या मे बी अदर हाई कोर्ट्स में भी ये स्पेशल लीव टू अपील का पावर एम्पावर्ड किया गया है। वहां स्पेशल लीव टू अपील नहीं करके स्पेशल अपील सॉर्ट ऑफ थिंग कुछ फाइल होता है। आप लोग जरा डायग्नोस रहिएगा क्योंकि ये जो पावर है बड़ा ही पिक्यूलियर है। एक one sort of jurisdiction, one sort of rights, everything is being created by only granting this leave। an oral jurisdiction है ना। oral jurisdiction create होता है at the end, मतलब originally तो यहाँ पर है। if we will go to this article 137, this is also the important part, subject to the provision of any law made by the parliament or any rule made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or ordered by it। This is the review power। फिर से जरा नोट कीजिएगा, दिस पावर ऑफ रिव्यू, power to review, of course it is the shall have, it's not confined to any order, this is always confined of any judgment pronounced or order made by it। कोई भी ऑर्डर हो सुप्रीम कोर्ट का या जजमेंट है, ये दोनों जगह पे अप्लाई करते हैं, बट दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी रूल मेड अंडर आर्टिकल 145। लेकिन ये तभी एक्सरसाइज होगा जब या तो पार्लियामेंट कोई रूल बनाए, जो पार्लियामेंट आज तक कोई रूल नहीं बनाया रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट, and any rule made under article 145। and yes, article 145 के अंदर एक रूल एग्जिस्ट करता है, and that is called order 47 of Supreme Court rules। so it would be regulated through that particular channel only। now and not otherwise, और दूसरा कोई मोड नहीं है अवेलेबल। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है ना सब्जेक्ट भी दो कंडीशन है, वन इज आइदर पार्लियामेंट और आर्टिकल 145। दिस इज रूटेड टू दैट पर्टिकुलर आर्टिकल 145। और मैं अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा आर्टिकल 145 की तरफ मूव कर रहा हूं। This is the rule of the court। Here is again the subject to the provision of any law made by the parliament, the Supreme Court may from time to time with
the approval of the president. This is the condition. What is the condition for that? With the approval of the president, make rules for regulating generally the practice and procedure of this court, including, and series are there. So this particular article का जो nature है ना, this is the nature of legislative. Very limited sort of legislative nature, confined to your own practice and procedure, which is the source of Supreme Court rules. And the objective is also there for regulating generally the practice and procedure of the court. मैं बहुत ज्यादा वर्डन देने के बजाय इस डिस्कशन को यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज डेमोन्स्ट्रेट किया था लास्ट सीरीज, मतलब आज 7th है, हमारी एक ही कोशिश है कि हम अंडरलाइंग प्रिंसिपल अपने ब्रेन में रखें कि किसी भी आर्टिकल या किसी भी लॉ को पढ़ते समय मुझे उसमें से क्या निकालना है और कैसे निकालना है, क्या कंडीशन है, व्हाट इज द नेचर, इज इट मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी, इज इट स्पेशल, और मतलब ये सारे जो सवाल हैं ना, इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं पढ़ते समय में। यानी वंस वी आर रीडिंग एनी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ, हम ब्लैंक नहीं होते, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं। वो क्या होता है, क्या जुरिडिक्शन है इनको, क्या इनको पावर है, क्या यहाँ पर ये आदमी आएगा, ये वो आएगा, या हम वहां जा सकते हैं या नहीं, हम ये फ्रेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कैसे, इन सब की प्रॉपर आउटलाइन आपको यहाँ पर मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि वंस इन प्रैक्टिस यदि हम इस रूट सोर्स को टच करने की कोशिश ना करें या स्किप फ्रॉम माइंड, then certainly there is a source of grievous error before the court. आपने देखा होगा कि कोर्ट कई बार ये कहती है कि अच्छा इसका कहीं से भी दिखा दो कि जुरिडिक्शन कहां से बनता है, आपने ये फाइल तो कर दिया लेकिन कहां से पावर आ गया, राइट कहां से इनकर्ड हो गया, ये बता दो। And we are literally failed to diagnose that particular part, which itself reflects that we didn't prepare properly. This is the part of preparation of the case. Next time मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि प्लीज आप सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी जुरिडिक्शन आते हैं सबकी एक एनालिटिक व्यू जो मुरारी लाल जी ने बनाया है, और वो कोशिश अच्छी है, उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट के स्कोप हैं, और एक टेबल सा बनाया है। और मुझे लगता है कि उसको बनाने में उनको कितनी मेहनत की गई होगी, मैंने उनके कितने दिमाग लगे होंगे, कितनी एनालिसिस इंटरनल हुई होगी। वो 5 पेज क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, वो मैं प्रोसेस महसूस कर रहा था कि उनके दिमाग में कैसे आया होगा, ये फील्ड लें या ये फील्ड जोड़ें या हटाएं, इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या होगा, इसके ऊपर एनलाइटन मुरारी जी खुद करेंगे। और ये एक्सरसाइज आप लोग जब तक नहीं करेंगे, मैं इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर कोई उस जुरिडिक्शन एनालिसिस के लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स का, यूनियन जुडिशरी का जो पार्ट है हमारे पास, इसको लेकर के एनालिसिस करके अपना इंडिविजुअल टेबल बनाने की कोशिश करें अपने तरीके से। एंड आई एम श्योर वो यदि आपने कर लिया, AOR एग्जाम की 50% तैयारी आपने कर ली। अगले डिस्कशन में मैं इसी जुरिडिक्शन से रिलेटेड कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं AOR एग्जाम में, इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा, आइदर आपको केस लॉ दिया जाए
या फिर कोई सवाल पूछा जाए, सबके पीछे का जवाब आप इन्हीं जगहों से ढूंढ सकते हैं. यू नेवर एवर वुड बी फॉल इनटू द ट्रैप. आप अभिमन्यु कभी नहीं बनेंगे. If, and the condition is if, honestly, प्रॉपरली अपने दिमाग से आप इस तरीके का टेबल क्रिएट कर लें जैसा मुरारी जी ने क्रिएट किया है लास्ट डॉक्यूमेंट में. ये प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाएगा कि हमने क्या सीखा है टिल द डेट. व्हाट वी लर्न द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और कल्टिवेटिंग आवरसेल्फ एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल by way of diagnosing this particular law. We are the custodian of law. Client is the custodian of fact. Client fact लेकर के आता है और law के साथ आप रैप करते हो जहां पर रिक्वायर्ड है और प्रॉपर रेमेडी के साथ आप प्रोसीड करते हो टू द कोर्ट, है ना. तो उसकी एक क्लियर फाउंडेशन मुझे लगता है हो गया है. और मुरारी जी जो ने डेमोन्स्ट्रेट किया है ना, मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं ऑन द ग्रुप, और आप इस डॉक्यूमेंट के साथ थोड़ा सा खेलना शुरू कीजिए. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. एकदम इन ब्लैंक अपने लिए 5 नहीं 7 नहीं 10 एलिमेंट आप ले लें, एक्सेल टेबल बना लें. नेचर, स्कोप, लिमिटेशन, बाइंडिंग, पावर, जुरिडिक्शन, टू हुम, कौन कौन स्टैक होल्डर्स हैं, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की. आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. गो थ्रू इट, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड स्टार्ट एनालाइजिंग. कहते हैं ना, साइकिल यदि किसी को सिखाना हो तो साइकिल ले लो और चले जाओ फील्ड में, जैसे जो करना है करो, खुद से अपने आप हो जाएगा, बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा. So that sort of things are there. मतलब if you will put your energy on this particular part, especially source and objectives, ये वो एक मॉडल है जहां से आप इंटायर प्रोसेस को समझेंगे, which is existing into this adjudication system. Not only the Supreme Court, पूरे थ्रू आउट सारे को आप डायग्नोस करने के लिए इक्विप्ड होंगे और ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम का होगा. So for this particular things we are just concluding. और now आप लोगों को जो कहना है प्लीज गो अहेड, और whatever is any questions please come up with that. Anyway, पहला क्वेश्चन मैं ही कर लेता हूँ. How was the discussion today? Excellent. Do you feel Nice, sir. it was something effective or Effective, sir. Murari ji? So you have hit the bullseye. Exactly, sir. Exactly, sir. थैंक यू सर. तो Quite मुरारी जी interesting. जरा आप इनलाइटन करेंगे, क्योंकि मैं यदि उस तरीके का टेबल क्रिएट करने की हिम्मत करूं, मैं शब्द बोल रहा हूं हिम्मत करूं, एक बार हमने हिम्मत किया था, वो टेबल हमारा आज तक रन कर रहा है पिछले 7 साल से. जी सर. तो ये वो क्रिएशन है जो कि मतलब लंबे समय तक चलता रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आपने जो हिम्मत दिखाई है और उसमें जो इम्प्रूवमेंट आप करेंगे, एंड आई एम डैम श्योर कि मैं यदि अभी चुप हो जाऊं, देन यू आर रेडी टू टेक ओवर द एंटायर थिंग वेरी इफेक्टिवली. थैंक यू सर. Isn't it? तो वो है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करना, यू नीड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. अनलेस अनटिल आप उस प्रोसेस से नहीं जाएंगे, उस पेन को और उसके इफ्स एंड बट्स को, बहुत सारे अनसर्टेनिटी है,
उसको जब तक रियलाइज नहीं करेंगे यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट टू परफॉर्म इन रियल वर्ल्ड। तो उसके लिए आप लॉयर हैं, आपको तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना ही करना है। तो लेट अस गो थ्रू दैट। वहां जाइए, उसको जरा एंजॉय कीजिए और देखिए एंड शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। स्पेशली मेरे साथ तो जरूर कीजिए सो दैट आई कैन ऑल्सो एंजॉय इट। मुरारी जी, कितना टाइम लगा उसको बनाने में? सर मैं टोटल का भी 2 घंटे 3 घंटे 3-4 दिन लगा रहा मैं उसमें, तो एटलीस्ट यानी 3-4 दिन का कंसिस्टेंट प्रोसेस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जी सर। और मैं हैरान हूं कि 4 दिनों में सिर्फ आप 4 पेज ही लिख पाए। और भी बहुत काम है सर, सिर्फ इसी काम में नहीं लगा रहा। मैंने यही कहा कि कभी 2 घंटे लगाए, कभी 3 घंटे लगाए। फिर बनाने के बाद आप बाद में आइडिया आता नहीं, यहाँ ये करेक्शन करना पड़ेगा, ये वर्ड ठीक नहीं है, माइंड में आता रहता है बीच बीच में। तो वो जो प्रोसेस है वो अपने आप में है, हाँ लेकिन जी। ऐसे कैसे चलेगा मुरारी? एग्जाम में तो 3 घंटे में आपको कम से कम 70-80 हाँ, पेज लिखने होंगे। ये उसका रेडी रेकनर हो गया ना सर। आपके 2 घंटे की क्लास को मैंने 5 पेज में समराइज किया था कि इमीडिएटली उसको, वैसे आपका लेक्चर के बिना ये समझ में नहीं आएगा, जिसने लेक्चर नहीं सुना वो इसको पूरा नहीं अप्रिशिएट कर पाएगा। अभी भी फिर रेफर करना पड़ता है, कई चीजें मैं उसमें नहीं डाल पाया जो आप इतना कुछ अच्छा बताते हो, वो माइंड में रह जाता है। उतना सारा पेज में लिखना काफी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक्सट्रैक्ट निकाला है जो रेडी रेफरेंस के लिए आदमी किसी भी टाइम थोड़ा सा समय भी हो तो उसको रिवाइज कर सकता है। और हमें भी याद नहीं रहेगा, आपका लेक्चर सुना है बहुत दिन बाद मुरारी जी, जो मेरे ब्रेन में थॉट प्रोसेस है वो हमने रिफ्लेक्ट किया दोज 90 मिनट्स, जी सर। राइट? एंड यू जस्ट पुटेड योर थॉट प्रोसेस 3 or 5 days लगातार कंसिस्टेंटली इन योर माइंड, कॉन्शियसली और इनकॉन्शियसली। यू एफर्ट्स टू पुट इनटू द पेपर एंड क्रिस्टलाइज इनटू देम। जब पेन डाउन आप करने के लिए जाएं, बहुत मेहनत लगता है सर एक एक सब फुल स्टॉप कॉमा को सेलेक्ट करने में। हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट में एंड डाल। आफ्टर क्रिएटिंग दिस, मतलब 5 दिनों की उपलब्धि में जो आपने क्रिएट किया, अब आप रियलाइज कीजिए कि उसके बाद हाउ डू यू फील योर इन योर कॉन्फिडेंस लेवल? बहुत फर्क पड़ा है, एकदम चीजें माइंड में बैठ गई हैं। जब भी एक्सप्रेस करना होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब 5 दिन पहले जो आपका थॉट प्रोसेस था ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आफ्टर 5 days इट्स इंटायरली चेंज्ड into the confidence, into the all the part जो भी है। अब मुझे भी अब हिम्मत करनी पड़ेगी आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, समझ सर तो ये पार्ट है। सो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो फील आती है, और मैं आपको ये बतला दूं कि ये वो टाइम है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप इसके ऊपर जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, विदाउट लुकिंग एनीथिंग यू कैन राइट मोर देन 50 पेज विद इन 3 hours। जी। आपके पास इतने थॉट प्रोसेस आपका अपना आपके ब्रेन में ऑलरेडी अलाइन है, सोच लिया है, इस डायरेक्शन में भी, उस डायरेक्शन में भी, अदर डायरेक्शन में भी, और डिफरेंट इंग्रेडिएंट पे, नेचर पे भी सोचा, स्कोप पे भी सोचा, जुरिडिक्शन पे भी सोचा, ऑब्जेक्टिव पे भी सोचा, लायबिलिटी, स्टेक होल्डर्स, एवरीथिंग यू हैव थॉट। तो उसी लाइन पर आप लिखना शुरू करें तो बहुत ज्यादा लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही ये छोटे पेज में दिख रहा है, but what is adopted in your brain almost created an entire book. It is a concentrated form, sir. So वो जो confidence है और वो experience, on the basis of that, if you will sit in the exam without any preparation, you can write any answer appropriately and properly. करेक्ट सर। तो गेम की तरह सर, गेम आपने देख लिया टीवी पे, अलग आप गेम खुद खेल के देख रहे हो, बैटल में जा रहे हो, बैट उठा रहे हो, बॉलिंग कर Exactly. रहे हो, तो वो जो चीजें एक्सपीरियंस तभी आता So है सर। ultimately, by way of this discussion, I am invoking to everyone to do this. ठीक है। So with these words आज conclude करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब भी एक्सरसाइज करेंगे।
अजय जी, आपको कोई ऑब्जर्वेशन प्लीज शेयर विद अस? As you rightly said, it is about the process. जब तक एग्जैक्टली आप उससे एग्जैक्टली गुजरेंगे नहीं, आपको वो आप उसको अपना नहीं बना पाएंगे। एंड जब वो करेक्ट। अपना बन गया तो फिर आपके लिए वो एक खेल है। एंड आई दैट्स व्हाट द अजय जी, एक कहावत मुझे याद आ रही है, प्रैक्टिस परफेक्ट्स द मैन। सर रियल सेंस ऑफ प्रैक्टिस जो है ना, वो इस समय ये नहीं कि एक चीज को देखा और 10 बार लिख लिया। इट्स नॉट एन प्रैक्टिस, इट इज अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। वो कॉपिंग, मेमोराइजेशन प्रोसेस। सर प्रैक्टिस ये है कि यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, राइट? यस सर। और वो प्रैक्टिस यदि है, देन इट इज अडॉप्टेड। प्रैक्टिस का पर्पस ये है कि वो आपके हैबिट में, नेचुरल हैबिट में इनकॉर्पोरेट हो जाए। यस सर। क्योंकि हर जगह वो आप होंगे और आपका दिमाग होगा, ना किताब होगी ना कुछ होगी, अपने आप वो शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं मतलब क्रिएशन ऑफ गुण, नहीं, सर एक स्किल क्रिएशन है जो हमने अडॉप्ट करना है। वंस अडॉप्ट तो आपके हाथ में कोई बुक नहीं रहेगा, फिर भी यू आर एबल टू स्पीक precisely express your opinion, your own individual opinion, which is not biased. It comes through your own thought process. यस सर। बहुत परफेक्ट लाइन को कैप्चर किया आपने, मैंने वर्ड को एंड पॉइंट को कैप्चर किया अजय जी, जो मैं मिस कर रहा था और मुझे मौका दिया बोलने का इस पॉइंट पे। प्रैक्टिस परफेक्ट मैन जो पॉइंट है ना, वो यही है प्रैक्टिस। अदरवाइज मिसलीडिंग है। आप एक चीज को 10 बार कॉपी कर लें फिर भी, अभी देखिए ना कैसे उसको ब्रेन में सेट करते हैं। मेरा अपना इंडिविजुअल प्रोसेस हमने आपके साथ शेयर किया विद आर्टिकल 32, है वो ना, भी यही 3 वर्ड से कनेक्ट किया। वो भी अब जितनी बार मैं, सर, सर आप कैसे सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका हम सीखते हैं इन हाँ, सेशंस। लेकिन मैं ये चाहता हूं, मैं लिटरली ये चाहता हूं कि आप लोग इस प्रोसेस पे एक बार जब एंटर करेंगे ना, तो आप लोगों का अपना ही तरीका इवॉल्व होगा और वो लिटरली बहुत सारा ब्रॉडन ऑफ दिस वे है। क्योंकि मेरा जो वे है वो एकदम लिमिटेड है, लिमिटेड होगा। तो इस तरीके से यदि डिफरेंट अलग थॉट प्रोसेस यदि इवॉल्व होगा और मजा आएगा। everyone cannot be Pele or Madonna या सचिन तेंदुलकर। every player has their own speciality or uniqueness, Potential. not potential, uniqueness. Yes, sir. Potential it's a capacity, is the hidden part कि उसको आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर्ड पार्ट जो लोग उसको अनदर एंड, जो लोग उसको देखते हैं वहां पर पिच पे परफॉर्म करते हुए। Individuality. हाँ, इंडिविजुअल यू नो, आपकी जो यूनिकनेस है जो आपके साथ ही रहेगी और आपके साथ ही जाएगी। इट इज योर ओन, इट कम्स थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस एंड यू नो, मैं कई बार सोचता हूँ सचिन तेंदुलकर के अलावा दूसरा सचिन तेंदुलकर हो सकता है क्या? नहीं। दूसरा सहवाग हो सकता है क्या? नहीं। everyone has their own style and pattern which may be the combination of so many things and perfection। क्या टाइमिंग है, वो सब कुछ जो है ना, प्रैक्टिस का जो आउटकम आता है, इट कम्स थ्रू योर ओन, माने आपके थ्रू ही प्रोसेस होकर के आएगा। दैट इज फॉर श्योर। चाहे कुछ भी हो जाए, आइंस्टाइन थे और वो आज नहीं है तो नहीं है। उनके साथ क्या गया है, उनकी पूरी सोच, यदि आज वो होते तो हम और आप जाकर के उनसे क्या बोलते, या यही कहते हैं ना। और जो भी उनके ब्रेन से आता है, इट कम्स थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस। द वर्ड आई एम सेइंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट? एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू सच प्रोसेस, जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड दैट इज द ओनली पेटेंटेबल। एम आई राइट और रॉन्ग अजय जी? नाउ यू कंटिन्यू, मैंने आपको इंटरप्ट। नहीं, इतना ही था सर कि उस चीज से गुजरना जरूरी है, तभी वो आप हाँ, के अंदर सेट हो जाता है। सेट हो जाता है, आप मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर आपके लिए वो स्ट्रेंजर नहीं रहता और इवन एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत नहीं है। नेचुरली यू कैन डू दैट।
सो मेरा रिक्वेस्ट इसलिए भी है कि ये एक्सरसाइज आप लोग वहां पर करें, कुछ कोशिश करें, कोशिश करने के बाद ही आगे बढ़े मामला। और बिल्कुल मत डरिए, खास करके बेइज्जती होने का डर, या बहुत बेकार सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, इस चीज का डर। ये सारे छोटे छोटे ऐसे डरावने डर हैं, भूत हैं, जो बचपन में ऐसा होता था कि एक सपना देख लिया तो उसके बाद डरावना था, तो उसके बाद आंख बंद करते डर लगता था कहीं वापस से वो सपना ना आए। सम सॉर्ट ऑफ आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, कुछ इस तरीके का डरावना मत बनने दीजिए, क्योंकि एक बार ये बन गया ना, पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेगा, इससे अभी पीछा छोड़ेगा। बचपन में एक हम आपसे टीचर ने क्लास में एक बात बोली थी, बेटर टू बी अ फूल वंस देन फॉर अ लाइफ टाइम। तो उस दिन से वो पकड़ ली, कोई भी सवाल होता है पूछ लेना चाहिए। आई टेंड टू मतलब ये जो डर है ना, जो जकड़ा हुआ है, फियरलेस कैसे होंगे हम लोग? ये तो डर ही है ना, जो फियर है, तो उसको मिनिमाइज करना जरूरी है, इरेडिकेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि डर तो बना ही रहेगा। और डर किस चीज का होता है? बेइज्जत होने का डर, हारने का डर, जान से मारने का डर नहीं, पिटने का डर अब नहीं रहा, वो बचपन में होता था, पिटाई खा जाएंगे, इंसल्ट होने का डर। इन सारे चीजों से उठना पड़ेगा ब्रॉडली, और हाथ लगाना पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा, तभी वह बनेगा। चीजें डेवलप होनी जरूरी है सर। दीपिका जी, एनी ओपिनियन? Sir, excellent words, sir. Actually, this no coming out of the fear. Really, this is a very important for us, because as you compare with our childhood fears, so once we get out of it, na, so sky is सर the मैं limit. आपको एक बात बताऊं, दुनिया चाहे चांद पे चले जाए, हम लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, लेकिन ये जो है ना बचपन की चीजें और ये छोटी चीजें हमेशा साथ रहती है। Yes, sir, yes, sir. देखिए, फियर एंड डेयर, यही दो चीज 24/7 आपके साथ प्ले करता रहता है आपके ब्रेन में। Yes, sir, yes, sir. Every part of life. ये वो बेसिक चीज है, ये कन्फ्लिक्ट हर डिसीजन के साथ आपके साथ है, और यदि नहीं आया उसका डेंजर हम आपको बताएंगे जब हम लोग एथिक्स में डिस्कस करेंगे। वेंकट रमनी का एक प्रॉपर नोट्स है, आप परफॉर्म तभी करेंगे जब फियर से ऊपर उठेंगे। Yes, sir. और वो जब उठ गए ना आप, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म होगा। Excellent, sir. तो Excellent. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने के लिए इंस्टेंटली सही आपको वो फियर वाले फैक्टर को थोड़ा पार करना पड़ेगा। और फियर में बहुत सारे रेगुलेशन आता है, डर के फियर जो है ना, फियर ओनली the source of all the regulation in the world of civilization. यदि कोई आदमी डर गया तो डर से बचने के लिए इधर नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं, एन नंबर ऑफ कंस्टेंट्स आप क्रिएट करते हैं प्रोसीजरल बिकॉज ऑफ द फियर ओनली। ये तो किसी रेगुलेशन के, मैं ग्रुप में क्यों कहूं कि सिर्फ एडमिन ही बात करे, बाकी लोग क्यों ना सिविलाइज। और यदि वहां रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी तो फियर ये है कि डिस्टरबेंस ना हो, अगेन द फियर। और ये मुरारी सर का रियली सर कंट्रीब्यूशन इज कमेंडेबल सर एक्चुअली हाउ ही नहीं, इज रियली हाउ it takes lot of time to analyze and मैं आपको बतलाया ना, yes, मैंने बिना बेशरम होकर के मैं फर्स्ट ऑफ मैं आपको ये बतला रहा हूँ, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये कहने में। हमने एक बार क्रिएट किया इसी तरीके की टेबल लीडिंग केस के बारे में, sir. और एक बहुत ही गणमान्य डेजिग्नेटेड सीनियर सुप्रीम कोर्ट के हैं जिनको मैं अपना प्रभु मानता हूँ, गुरु मानता हूँ लॉ में। उन्होंने एक लाइन बोला कि आई कैन नॉट कम्पीट विथ राजीव, क्योंकि 64 जजमेंट को लोग इनलार्ज करते हैं और ये 4 पेजेस में कंडेंस कर दिया। दिस इज नॉट मतलब इजी Easy जॉब, task. इजी टास्क। सो ही वाज सो सरप्राइज कि उन्होंने ये शब्द कहा, और वो भी मेरे एब्सेंट में।
So that जिसको मैं भगवान मानता हूँ। And he was the AOR topper on their own time. exactly, sir. Maninder Singh, sir. That time was in the 70-80. Is it Maninder Singh, sir? No, not Maninder Singh, another one. So I'm saying the name. He is the SV Upadhyay, senior advocate SV Upadhyay. So the question is this कि उनका वो शब्द मेरे लिए मतलब कितना बड़ा कॉन्फिडेंस था, वो मैं आज तक जी रहा हूँ मुंह बंद करके। आज पहली बार आप लोगों के सामने हमने ये कहा है, वो एप्रिसिएशन था। और देन आई रियलाइज कि रियली आई डिड द जॉब, समथिंग पेक्यूलियर वो किसी ने नहीं कर पाया। और पिछले 5 सालों से वो हर AOR एग्जामिनी के हाथ में होता है। वो जो लीडिंग केस का कंपाइलेशन है आपने देखा है, लास्ट में वो लिखा हुआ। अब भरत जी ने, अभी भी भरत जी हैं, भरत जी अनम्यूट करें, वही देख करके मुझे फोन किया कि सर आपने ये कोड क्या लिखा है, ये कोड क्या लिखा है। क्या था भरत जी? वो भरत जी सो गए लगता है। The things is, बहुत क्लियरली मैं बतलाना चाहता हूँ कि जिस चीज को आप शिद्दत से काम करें, कंडेंस करें। मेरा मतलब उल्टा ही सोच था। सोच वहां पर उस समय ये था कि हर लोग एक्सपेंड करते हैं, एलोबरेट करते हैं, मुझे उतना चीज ले ही नहीं जाना, मुझे कंडेंस करना है। मुझे सारे क्लू मिल जाए वहीं से। मुझे ये था कि मुझे एक मास्टर की चाहिए और एक ही की चाहिए जिससे सब ताला खुले। That I started searching on that line, reverse direction। सारी दुनिया आगे भाग रही है, इतना मोटा मोटा किताब लेकर के जा रही है, मैं एक पन्ने ढूंढने के चक्कर में पीछे चल रहा हूँ। और चलो, एंड चलते चलते हमने वो चीज निकाल लिया जो लिटरली आप लोगों के काम आ रहा है। ये बड़ी बात। देन आई रियलाइज कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि राजीव जी आप किताब लिख लीजिए, किताब लिख लीजिए। लिख तो लूं, लेकिन मैं लिखूंगा 4 पन्ने का किताब, फिर क्या होगा? A favor for us, sir. वो भी प्रेसियस है सर। Yes, नहीं, sir. आपके Sir, मैम जब AOR एग्जामिनेशन हो जाएगी तो आपके लिए भी वो यूजलेस हो जाएगा। नहीं सर, आपकी कही हुई या आपकी दी हुई सारे नोट्स हमारे लिए लाइफ टाइम है सर, हमारे केवल AOR एग्जाम के लिए नहीं है ये। सर वो 4 पन्ना समझने के लिए फिर मुरारी जी को एक और किताब लिखना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं से अप्रिसिएशन हुआ। हमने एक अलग एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई थी प्रोफेशनल एथिक्स की, जो सिलेबस एग्जिस्ट नहीं करता था, और उसको हमने कई जगह पे डिस्कस किया था, शेयर किया था। अब मैं ये देख रहा हूँ कि रजिस्ट्री ने उसको नोटिफाई किया है प्रॉपर, उसको अमेंड करके उसी चीज को डिट्टो नहीं बट प्रॉपर सेम स्पिरिट एज देयर उसको ये किया है। तो इन लोगों के लिए भी एक कहीं ना कहीं वो हेल्प साबित हुआ, इम्प्रूवमेंट के लिए भी हुआ। तो कहीं ना कहीं जो मेरा पॉइंट यहाँ पर सिंपल है कि यदि आप शिद्दत से अपने दिमाग से यदि काम करते हैं और परफॉर्म करते हैं तो निश्चित रूप से वो पेटेंटेबल वर्क होता है जो सबके लिए काम आने लायक होता है। और मैं चाहता हूं कि आप सबके सब उस पेटेंटेबल वर्क को करने का तरीका सीखें। एंड दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग। मुरारी जी ने आज इस बार तो लाइव उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। सो और मैं आपको बताऊं, मैं उस 4 पेज को बनाने में कितने टाइम लगाए होंगे। मुझे लगता है कि मैंने करीब 1 महीना एक्सपेंड किया था उस 4 पेज क्रिएट करने में। मुरारी जी डोंट वरी, आपको ज्यादा टाइम लगा, आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। मैंने बैसाख नंदन वाली कहानी नहीं है। एनीवन नोज बैसाख नंदन वाली कहानी? जी सर, हाँ, बता दीजिए सर। बैसाख नंदन बेसिकली गधे को कहा जाता है। और गधा जो है ना, सावन के महीने में उसको खाने के लिए बहुत कुछ होता है। और लेकिन उसकी एक आदत है कि जब थोड़ी दूर 1 घंटा वो खा लेगा फील्ड के अंदर, तो पीछे मुड़ करके देखता है कि कितना एरिया हमने कवर किया। और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हमने कुछ नहीं किया, और वो टेंशन से दुबला होता है। और बैसाख का वो समय होता है जब पूरा फसल कट चुका होता है, 5 मिनट में एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचता है, फिर पीछे मुड़ करके देखता है, अब बहुत खुश हो जाता है कि लो, हमने तो आज पूरा का पूरा फील्ड क्लियर कर दिया।
और उस हैप्पी में वो मोटा होता है। दैट्स व्हाट सेइंग हिम बैसाख नंदन। जी तो वो वाली कहानी नहीं है। आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेट मत होइएगा कि इतने मेहनत के बाद ये बस इतना सा ये रहा, बट ये वो फाउंडेशन है जो आगे चल करके तरीके से फ्लोराइज करेगा, और जो अंडरस्टैंडिंग और जो समझ आपको क्रिएट हुई है वो कमेंडेबल होगा। फिर यू नो एग्जैक्टली, मतलब यू आर रेडी टू स्प्रेड योर ओन विंग्स। इवन आप क्वेश्चन देखेंगे ना, अभी मैं तो इस सेशन के बाद अब क्वेश्चन वाले में एंटर करूंगा। अगली बार से मैं सुप्रीम कोर्ट के जो यूआर एग्जाम के क्वेश्चंस है ना, लेटेस्ट अप टू लेटेस्ट, वो सारे क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा और उसके साथ डिस्कशन करेंगे। वहां देखिएगा कि आप कितना कंफर्टेबल रहते हैं। हाँ, एक बात और मैं बतला दूं, देयर इज इनफ स्कोप टू इम्प्रूव इट। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप लगे रहे वहां, छोड़े नहीं। ये एक प्रोसेस जो चल पड़ा है वो चले। उस रिफाइनमेंट प्रोसेस में मैं भी हूं अभी भी। तो ये पार्ट सही। एवरी डे न्यू लर्निंग टेक्स प्लेस। मतलब ये हो रहा है ना कि मैं इस मुरारी जी डिस्कस से एक चीज पूछना हाँ चाहती हूँ मुरारी जी से। सर आप कितना टाइम लगाते हैं और किस टाइम बैठते हैं और किस टाइम करते हैं, ये बता दीजिए। कोई रैंडम मैं मुरारी जी रैंडम से पहले मैं बतलाना चाहता हूँ, मैंने डिस्कशन नहीं किया फिर भी मैं बताता हूँ। बिल्कुल ये वैसी कहानी है। 16 इयर्स, 15-16 साल और 10th के समय में यदि किसी लड़की से प्यार हो जाए किसी लड़के से, तो लोग क्या क्या कर सकता है और कब कर सकता है। मैंने क्या उसके लिए टाइम फिक्स करेगा? वो तो इंतजार में, जुगाड़ में रहता है कि कैसे टाइम मिले। सही बात है, यही बात है सर। Excellent, sir. कि Excellent, बस sir. में ये चला बात जाऊं इस सही है। समय या उस समय, मतलब वो जो कमिटमेंट लेवल है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ये बहुत सही बात है, ये सही बात Excellent. है। तो ये बड़े सवाल अच्छे। आपको बहुत इररिलेवेंट, आप किसी लड़के से आप पूछिए जाकर के या लड़की से, तुमको किस समय कितना टाइम चाहिए इस काम के लिए। सही बात। दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू आर पोजिंग टू मुरारी जी। 24 hours वही पैशन। चिपक रहते हैं सर। कितना आई सटीक एम जवाब सॉरी, दिया मैं कितना ये राजू जी क्लेम ने करता कितना हूँ। राजू जी मैं ने ये बड़ा सटीक जवाब दिया, सटीक आंसर दे दिया। देखो ये दिमाग में मैं भी पड़ वही गया। कह रहा था, वो यही हैव कह टू रहा था। अपने मैं प्यार। मैं इस फोरम में यहाँ पर हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के माइंड के अंदर की बातें को समझ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं छोटा सा राइट राइट राइट। फीलिंग को। तो इसीलिए मैंने मुरारी जी के कहे बिना उनका सवाल हड़प लिया। एंड एक लॉयर को ऐसा करना भी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। वो जो आपने वर्ड बोला ना, इंसल्ट, वो मतलब डर, वो मेरे को लगता है पैशन मेरे ऊपर स्टिक बैठता है। पैशन पैशन रैंडमली जब भी टाइम मिला वो वो वैसे भी कमिटमेंट एंड पैशन होता है, दोनों चीज होता है। तो राइट राइट। मैंने मुरारी जी को कभी नहीं बोला ऐसा करने के लिए, तो उनकी पैशन ही वो रिफ्लेक्ट हो रही है। और लिटरली यही चीज मुझे देखना है। हर एक बंदे में, यस मैं यस। यही चीज ढूंढता हूँ जहां पर ये इंग्रेडिएंट मिल गया कि ऐसा कुछ भी जो आप खुद इनिशिएटिव लेने लग जाए, वो मोमेंट होता है मेरे लिए कि चलो यस यस यस, आई वाज वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर। अजय जी ने खुद मतलब रिकॉर्डिंग की, खुद सामने डाला, खुद इनका प्रोसेस बिल्कुल मतलब सोचने का तरीका अलग है। मुरारी जी ने ये स्टेप्स लिया है। तो ये जो इनिशिएटिव लेने वाली बात है, बहुत सारे, बहुत कंप्लीट सीरीज है। जब आप बात करेंगे ना तो आपको एकदम पता चलेगा हर के साथ कि हर के ब्रेन की उसकी ओन यूनिक पिकुलियरिटी है। एंड आई एम एंजॉयिंग ऑल दिस लिटरली। एंड दैट्स व्हाट, ये सवाल का जवाब मैंने मुरारी जी से लिटरली डाका डाल के छीन लिया, हड़प लिया। बिल्कुल सही बोला आपने सर। सर मेरा भी एक रिक्वेस्ट है सर, आप तो किताब शुरू करना है सर, आपको किताब लिखना है एक, because all your experiences pen down in a particular book, so generations will remember you forever. देखो नहीं, दैट्स करेक्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगेन दिस इज अगेन इस आंसर इज द प्रीवियस वन। जिस समय मेरे दिमाग में वो पागलपन चढ़ जाएगा और मुझे वो मिल जाएगा, देन आई विल प्रोसीड। प्लीज सर you, because you deserve एंड it ये actually. दीज आर द ऑब्वियस प्रोसेस, यानी आपको आर्टिफिशियल थिंग क्रिएट करना है। अब जैसे है बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, भैया
मुझे तो मेरी तो कोई बंदी नहीं है या बंदा नहीं है, बहुत सारे डील्स में दिखता है आजकल, तो वो निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए, तो वो नहीं है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आर्टिफिशियल है। जो ओरिजिनलिटी है ना वो अपने आप कहीं ना कहीं से निकल जाती है, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, नहीं, मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही थी मुरारी जी से, मैं इसलिए पूछ रही थी बिकॉज वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग लॉयर। 6 घंटे 7 घंटे तो हमारे बाहर हो जाते हैं, घर पे 2-4 घंटे 6 घंटे की नींद भी चाहिए होगी, एंड उसके बाद कल की तैयारी भी चाहिए होगी, फिर उसके बाद ईयर का एग्जाम, फिर उसके बाद इतने थॉट्स, और उसके बाद ये वो सब कुछ करना, हाउ इज इट पॉसिबल? दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। मैं आपको ही इज ऑफ माय, आप यंग हो, मेरी बात अब मैं सुनिए, आप सीरियस बहुत यंग हो। जवाब, एक बात बताओ, आप बहुत यंग हो अभी, आप कोई भी मतलब अटैक सह सकते हो। हमारी, बिकॉज ही इज ऑफ माय, मतलब ही मस्ट बी माय एज और मे बी यंगर मी और एल्डर टू मी, बट एट दिस एज हाउ कैन ही जस्ट कंसंट्रेट सो मच? मतलब सीख, मतलब हमको तो आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, हमें लगता है कि मैं भी यही सोचा सो मेनी थिंग्स। मैम बहुत सारा कन्फ्लिक्ट आ रहा है, मैं एक लाइन में आपको बता दूं, दिस इज नथिंग कंसर्न विद द एज, इट इज अ माइंडसेट, नंबर 1। और आप यदि ब्रेन में 136 के बारे में सोचना शुरू करें ना, तो एक कोट से आप आर्ग्यू करके निकलें, और मैं यदि आर्ग्यू करके निकलूं और जाऊं बाथरूम में, तो बाथरूम में मैं सोचने लग जाऊं 136। मतलब वो जो है ना, वो टाइम जो है ना, वो सोचने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत, ऑटोमेटिकली दे वेटिंग फॉर यू और यू आर वेलकम, रेडी फॉर द वेलकम टू देम एनी मोमेंट, व्हेन एवर योर ब्रेन इज फील रिलैक्स, उस रिलैक्स मोड में एंजॉय करने के लिए वो आएगा, द वर्ड आई एम यूजिंग द एंजॉइंग। और तब आपको लगेगा कि नहीं, कहीं से भी टाइम लग निकालते हैं, मतलब प्रायोरिटी इतनी ज्यादा लगने लगेगी कि चलो इसको छोड़ो उसको छोड़ो, पहले इसको थोड़ा सा कर लेते, ऑटोमेटिकली वो टाइम निकलेगा। और वो स्ट्रक्चर टाइम बिल्कुल नहीं है, ना ही वो मैथमेटिक्स है, ना ही वो कैलकुलेशन है, एवरीथिंग वुड बी कोलैप्स। किसी वो पर्टिकुलर टाइम में आने के लिए जिस समय आप टाइम फिक्स करेंगे उस समय वो आएगा ही नहीं थॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो तो अपने टर्म्स आपने वैसे भी आपने बेस्ट एग्जांपल दिया सर, 9th-10th के लव अफेयर्स। हम कोई मोमेंट्स नहीं ढूंढते थे उस वक्त। So everyone has such sort of experience. Thank you, Rajesh. definitely, sir, definitely. Of course, यदि वो नहीं है, then in another language I can say they are not normal human beings. Because this is also the part of process, you know, मतलब ये natural process है। कहीं ना कहीं तो अफेक्शन रहता ही है, मतलब किसी न किसी तरीके से होता है। मेरा एक छोटा बेटा है, अभी 10 साल का है, उसको पता नहीं वो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने का इतना कमिटमेंट है, वो सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसी में लगा रहता है। ये भी वो पैशन दिख रहा है वहां पे। एक दूसरा है, उसको और किसी चीज का कितना भी वो पिटाई खा लेगा, डांट सुन लेगा, लेकिन वो मोबाइल का एक सर्टेन गेम है वो देखेगा जरूर, ये उसका पैशन है अभी। इट मे बी शिफ्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, नहीं तो उसको जो इजीली अवेलेबल है अपने टाइम को ऑक्यूपाई करने के लिए, फ्री टाइम में जो करने का मन करे, आप समझ लीजिए यही वो 16 का प्यार है, सिंपल। क्या दीपिका जी? मजा राइट सर। मजा। और सर आपके एग्जाम्पल, जो तरीके से आप एग्जाम्पल देते हैं ना सर, वो पूरा का पूरा जहन में घुस जाता है। अरे वो अपने आप आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मैंने ये एक्सपीरियंस है सर। सर ये बोलचाल की भाषा में जो एग्जाम्पल होती है ना, वो हमेशा याद रह जाते हैं। फिर मुझे बस ऐसी बातें कोर्ट में याद आ जाए, बस सुन जाए। ये सारे पैशन एग्जाम्पल वर्ड ये सब नहीं याद रहेंगे, लेकिन आपने जो वो लव अफेयर वाला कह दिया ना, बिल्कुल वापस जिंदगी वापस आ गई सर, जवानी वापस आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you, everybody.